ان کو جواب نہیں دے پاتی. پھر میں جب براڈ پر آتی ہوں تو تبھی میں کہتی ہوں اچھا جی آپ سب خوش اچھا رہیں. نیچے ام سسٹر نیچے ایک منٹ جی تو میں نیچے بیٹھ کے ام سسٹر آپ بھی سنیں, نیچے بے شک بیٹھ کے سنیں جی. نیچے ایک بھائی نے میسج کیا ہے کہ وہ مسرور کی براڈ پہ وہ ایک مسلم خاتون کو انہوں نے اس سے بات کر رہے ہیں, تو آپ جائیں. بالکل انہی سے کر رہا ہوں, میں تو سے کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سے تعبیر دو کی ہے, تین تعبیر ہے. نئی باتیں کیے جا رہے ہیں. اچھا اس کی آپ کہہ رہی ہے تعبیر تعبیر تعبیر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی تعبیر نہیں کی اس کی, کلیئر کٹ بتا کے گئے. حدیث میں بتایا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ کریں گے دجال کا. آپ نے کہتے ہیں حدیث کو ہم مانتے پہلے ہیں. پتا تو لگے عیسیٰ کون سے والے. تین آدمی سوال کرو آگے جواب دینے والا ایک ہو, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی تک تو یہی نہیں پتا لگ رہا کہ عیسیٰ کون سے والے. پہلے یہ تو پتا لگے, لڑائی تو بعد میں کریں گے نا. پہلے پتا تو لگے ہے بندہ کون ہے. ابھی تو بندہ ہی نہیں پہچانا جا رہا ہے. لڑائی پہ تو بعد میں جائیں گے, بندہ ملے تو پھر لڑائی کریں گے نا. ابھی تو بندے کا ایک نہیں خواب والی حدیث خود ہی نکال دی, ٹھیک ہے, حضور بتا رہے نہ نہیں کہیں میں لکھا ہوا. نہیں. آپ یہ بتائیں ایک بندے کا حلیہ ہے کہ دو بندوں کا حلیہ یہ کس کا؟ ایک بندے کا, دونوں حدیثوں میں ایک بندے کا عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ حلیے؟ ڈفرینٹ ہولی ہیں نا, خواب میں تھے, خواب میں ڈیفرنٹ تھے, بندے تو ڈیفرنٹ ہی حلیے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بندوں کے. آپ کو تو اس کا یہ حلیہ مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ہیں. اس حدیث سے یہ وہ ملتا ہے ہمیں. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم دو ہیں. ایک ہے سرخ رنگ والے, گھنگریالے بال والے اور سینہ چوڑا والے, وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جو آسمان پہ ہیں. ایک عیسیٰ ابن مریم ہے جو زمین پہ ہیں, جن کا مقابلہ دجال سے ہونا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں گندمی رنگ والے, بال لمبے ہیں, سینہ پست ہے. اس کا اچھا, دجال. تو یہ آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن یہ کی ہے. حضور بتا رہے, ٹرانسلیشن کہاں سے کر دی؟ حضور بتا رہے گندمی ہے حضور وہ. نے یہ حضور نے یہ کہا ہے کہ وہ دو ہیں, مطلب وہ اپنے ورڈ سے بولا ہے کہ وہ دو ہیں, یہ تو بولا جب ہے. ایک انسان جب حلیہ بتا رہا ہے, میں ابھی بتاتا ہوں, ایک نادر کا حلیہ سن لو سارے لوگ. اب مجھے بتانا ہے ایک بندہ ہے کہ دو ہیں, سارے سن کے مجھے بتانا. نادر کا حلیہ بتا رہا ہوں. نادر کا حلیہ یہ ہے کہ رنگ سرخ ہے. وہ جو کینیڈا میں رہتا ہے اس کا حلیہ بتا رہا ہوں. رنگ سرخ ہے, بال گنگریالے ہیں, سینہ چوڑا ہے. ایک نادر کا حلیہ بتا رہا ہوں جس کو میں پاکستان ملا تھا. رنگ گندمی ہے, بال لمبے ہیں, سینہ پست ہے. اب بتائیں ایک بندہ کہ دو بندے ہیں؟ سب مجھے لکھ کے بھی بتائیں اور اوپر بھی بتائیں مجھے. اچھا مسرور بھائی ایک منٹ ذرا. مسرور بھائی یار وہ جو پیغام والی فوٹو ہے نا وہ لگا لیں, کیونکہ پیغام پہ ہی تو پہنچے نا وہ, اور بڑی کر لیں اپنی وہ تصویر جو ہے نا. جب حلیے دو بتا رہے تو بندے آٹومیٹک دو بن جاتے ہیں. آپ کہتے مسرور بھائی وہ ہیں پیغام لگا لیں, پیغام لگا لیں سامنے, کیونکہ وہ لوگ زیادہ ہیں تاکہ پیغام پہنچ جائے لوگوں تک. جی جی سسٹر. آپ کہہ رہی ہے نہیں, جب تک منہ سے نہیں کہو گے یہ دو بندے, میں نہیں مانتی. حلیہ بتانا تھوڑا نہیں ہوتا, کافی ہوتا ہے حلیہ بتا. تو اور اس کا ذکر بھی دجال کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کا تو ذکر بھی دجال کے ساتھ ہے, زمین والے کا, خواب والے کا, گندمی رنگ والے کا. پھر اس کے ساتھ دجال کا بھی ذکر کیا ہے. اتنی واضح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بندہ اگر اڑ جائے کہ نہیں ہم نے نہیں ماننی, وہ اس کا تو حل ہی کوئی نہیں. کیا تو کوئی حل نہیں ہے انسان کے پاس. ویسے کہتا رہے نہیں منہ سے کیوں نہیں بولا. السلام علیکم. ایک منٹ جی بھائی کیا میں بول سکتا ہوں؟ نہیں ابھی نہیں بول سکتے, آپ بات ہو رہی. تو جب حلیے دو بتا دیے اور جس کا حلیہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ دجال کا بھی بتا دیا کہ اس کے وہ بھی طواف کا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم, اور ساتھ دجال کا بھی بتا دیا وہ کر رہے ہیں. اتنی واضح. اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوتا اور وہ کہتے کہ یہ دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو وہ یہ بات بولتے نا کہ وہ دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, کوئی اور ہوں گے, یہ ساری بات بولتے. اچھا آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں نا, آپ قیامت کی نشانیوں والی حدیث نے کھولے نا, اس میں صحیح لکھا ہوا ہے سارا کہ کون سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. چلے بتائیں ابھی کھولیں. کون سی بخاری مسلم کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ بخاری ہے, مسلم ہے, کون سی ہے؟ یہ مسلم میں بھی ہے, مسلم والی کھول دیں جس میں قیامت کی نشانیاں ہیں. نہیں قیامت کی نشانی حدیث نمبر کیا نمبر ہے حدیث کا؟ ایک منٹ پھر میں بتاتی ہوں آپ کو, ایک منٹ. کہہ رہی ہوں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون سے والے حصہ. یار جو بھی اوپر دوست آ رہا نا وہ میوٹ لگا کے بیٹھے گا, ٹھیک ہے. ایک بات اگر کسی کو جواب مل رہا ہے تو آپ بولنے دیں نا. اگر کسی کو جواب مل رہا ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. نہیں اگر کوئی صحیح بات کر رہے, آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ کو نہیں نا پتا, ہمارا تجربہ بڑا ہے, بات مکس اپ ہو جاتی ہے نا, ہمارا بہت تجربہ ہے اس بارے میں.
अगर आपकी बात मुझे भी खत्म बहुत अच्छा तजुर्बा है कि आप लोग कैसे लोग हो, तो मुझसे जी प्लीज कोई सेंसिबल होस्ट बात कर लें। हाँ, मेरा भी बड़ा तजर्बा है, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ के आया हूँ इधर, सारे तजर्बे करके आया हूँ इधर, सारे तजर्बे रंग तो बिरंगी हदीस नीले पीले काले और ऑरेंज सारे आप में ही पैदा होते हैं, मुझे हदीस से पता है। तजर्बे होते हैं ना, वो हदीस से यार यार एक मैडम मिनट, आप इतना कोई खाना माइक ना निकाल बोले रहे यार, हो हदीस के बारे में। गलत अल्फाज नहीं, ये सही अल्फाज हैं। म्यूट लगा के, कहाँ पर गलत है किसी को म्यूट यार, आया म्यूट म्यूट नहीं बोलना। 72 इकट्ठे होने वाले हैं। बोलने नहीं देते। 72 हाँ मैं बोले देते पाकिस्तान में। आवाज खुलवाओ हमारी पाकिस्तान में, बोलो मैंने बोलना है, कादियानियों के साथ मुनाजरे करने हैं, इनकी आवाज खोलो। हाँ, हमारे तो माइक बंद की हुई पाकिस्तान में, तो कहते हैं। इधर ही ये तो शुक्र करो कि इतना बोलने देते हैं तुम लोगों को हम। हाँ जो भी यहाँ पे आए ना प्लीज सेंसिबल बात करें, जो मेरी कम्युनिटी से भी आ रहा है तो लड़ाई ना करे, अगर इल्मी आपकी बात कौन सी करनी है तो करे। कम्युनिटी है? ये तो बरेलवी है, आपकी कौन सी कम्युनिटी है? ये वो तो शिया बरेलवी। इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक जो मुसलमान हैं वो आ रहे हैं। कौन से बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी? साहबा को गालियां देने वाले इस्लामिक। मैं इन चीज़ों को मानती भी नहीं ना, मैं अच्छा वो बरेलवी तो हूँ, मैं मानते सिर्फ हैं ना मुसलमान हूँ। अपनी। अच्छा हदीस बताएं, हदीस कौन सी है? जी मैं निकाल रही हूँ, एक मिनट। यार ये तो ज्यादती है कसम से। तो वही बात हो गई, इंडिया के बॉर्डर पे गया जंग करने, मैंने कहा भाईजान इंडिया के फौजी को सब्र करो यार। यार मुसलमान भाई, आप कोई बॉर्डर ही चेंज कर लो यार, इंडिया का ही होता है border। इंडिया में जाते ही उधर हूँ लड़ाई करनी। अच्छा, क्या कहते हैं फौजी? फौजी गन सीधी कर लेता है, मैं कहता हूँ भाई सब्र कर जरा, मैं अपनी घर बुलाया अभी लेके आता हूँ, मैं 2 दिन बाद इंतजार करने आऊँगा। फिर वो बैठा रहता है, इंतजार करता है, मैं गोलियां कलेक्शन कोफ में भरता हूँ, भरी नहीं जा रही होती। वो देख रहा होता है मुझे, कहता है वो भी जा, आप तैयार है? ये नीचे बंदा कह रहा है असाइलम लेकर खुश ना हो भाई, मुझे- हमारे नबी ने भी असाइलम लिया था मदीना में जाके। मुझे क़यामत की निशानियां तो मिल रही हैं, रेफरेंस में रेफरेंस के साथ बात करना चाह रही हूँ ना। सीधा नबी पर टैक, माशाल्लाह, तबलीग देखिए अच्छा झूठ फिर है। आप हदीस तो नहीं मिली तो आप क्या करें फिर? नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, मैं रेफरेंस के साथ ढूंढ रही हूँ, वैसे निशानियां वाली हदीस से मिल रही है, रेफरेंस के साथ ढूंढ रही ओए हूँ। कलीम, लास्ट वार्निंग है तुझे, कलीम लास्ट वार्निंग है, मैंने वार्निंग क्या होती ठीक है है? उसको पता है, बस हाँ ठीक है, उतारे हैं। जिसने समझना ही नहीं है उसको वार्निंग है क्या? मतलब थोड़ी वार्निंगें दी हैं अल्लाह ने इनको, उनको तो अल्लाह की वार्निंगें समझ नहीं आ रही बेचारों को। शुफ क्या शुफ वाली भी, भाई किधर तक पहुंचे डिबेट है? नादिर भाई शुफ शुफ वाली सरकार भी इनकी कम्युनिटी है। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं मैंने मौलाना कहा भाई कहाँ तक पहुंची यार, बहुत बोरियत हो गई यार, इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी राइफल घड़ी में। को हवाला लेने चली जाती हैं वो। वो शुफ वाली सरकार के खिलाफ ही जहाद हो रहा है, ऐसे लोगों ने ही बदनाम किया हुआ है, तो आप प्लीज हर किसी को इंक्लूड ना करें, यहाँ पे धोखेबाज ही बहुत है। आपकी कम्युनिटी है, मैंने तो ये कहा आपकी कम्युनिटी है, मैंने कुछ हमारी थोड़ी। कम्युनिटी नहीं है ना, वो आप लोगों के कोई एजेंट्स होंगे जो बदनाम करते रहते हैं। इकरारुल्लाह हम मानते ही नहीं उनको, तो फिर अकरार सारे उनको कह रहे हैं धोखेबाज हैं। धोखेबाज नहीं, लाइन लगी होती है दरगाह नहीं के नहीं, सामने। खत्म वो नबूवत तो लोग दीन से मुजाहिद है। दूर लोग हैं। अच्छा मुझे एक सही मुसलमान बुखारी की है, हदीस मिली है, हाँ जी मिल गया, हदीस मिल गई, चलो अनवर खान आप रेफरेंस म्यूट के लगा साथ रहे जो हैं, म्यूट मिली लगा है। रहे हैं। नंबर बता दें क्या है? सही बुखारी की 1412। 1412। क्या नंबर है? क़यामत आने से पहले माल और दौलत। अच्छा ये तो अनवर खान लास्ट वार्निंग है, अनवर खान लास्ट वार्निंग है, माइक नहीं खोलना, अच्छा लास्ट वार्निंग है, माइक नहीं खोलना, उतार दूंगा। 1412 अपनी बारी पे बोल सकते हो, ठीक है, वरना नहीं। 1412 ओके तो गया। 1412। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत आने से पहले माल दौलत की इस कदर। नहीं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं है, एक मिनट। क्या यार, बताई थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कौन से वाले ईसा अलैहिस्सलाम हैं, ब्राउन या सुर्ख घुंघराले बाल वाले। मसरूफ भाई कैसे अकीदे साबित हो रहे हैं यार, ये अकीदे पंक्चर लगाए जा रहे हैं ये तो। हाँ वो इकराम लखन ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी वो नई ट्यूब लेके गया इनकी कम्युनिटी वाले बंदे के पास, उसने 10 पंचर लगा निकाल दिया। उसने कहा खुदा का खौफ कर, कहता खौफ ही तो किया वरना 20 निकाल देता। यार इतने जहाँ तक कल मेरा रिकॉर्डिंग आप लोगों ने किया, मैं अभी आया हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर आप लोग कर लेते तो सही है। अभी नहीं, आप काम कर लो, कोई बात नहीं, बाद में भी हो जाएगी। इतनी जल्दी क्या है?
اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ بڑا مناظرے سے تو آپ پہلے کا بھاگا ہوا ہے. مناظرہ شروع کب ہوا ہے جو کہے گا بھاگ گئے ہو؟ نہیں کل آیا تھا مسرور بھائی, یہ حوالہ لے کے آنا تھا اس نے, اور اس نے کہا تھا اگر یہ حوالہ دکھائے گا تو آج سارے ہم غیر احمدی ہو جائیں گے. اور اگر بتائیں ہم کیا کرنا ہے؟ قیامت نہیں آئی, نشانیاں نہیں آئیں. نہیں نشانیاں پڑی ہوئی آپ کو ریفرنس کے ساتھ چاہیے, ریفرنس کے بغیر تو کافی نشانیاں مانیں گے, ورنہ تو بھائی آپ کی کمیونٹی والے تو ایسا جھوٹ بولتے ہیں, اللہ معافی دے. ہوئے مسرور بھائی نہ پوچھ. اچھا صحیح مسلم کی ایک اگر حدیث نہ آ رہی ہے احمد سامنے. مرزا قادیانی کی کتاب سے میں آپ کو حوالہ ابھی لا کے دیا ہوں, ہاں تھوڑی دیر میں صحیح ہے, تھوڑی دیر میں ورنہ آ میں چلے جاؤ, جاتا ہوں. مرزا صاحب تھوڑی دیر میں آ جاؤ. یہ ذرا آپ کی جو بہن ہے نا ان کو بھگتا لے, پھر آ جائیں تھوڑی دیر میں. اچھا کون سی اب حدیث کون سی مل گئی اب؟ حدیث ہے 156 لکھا ہوا ہے یہاں پہ صحیح مسلم میں, صحیح مسلم کی 156 باب نزول عیسیٰ ابن مریم. بخاری یہ سے ذرا کیا؟ چیک کریں. بخاری سے مسلم کیا یار, اتنا طنز کرنے کی کیا بات ہے, آپ پلیز سینسیبل بندے سے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, آپ علمی بات کرنے ہی تو کریں. اس میں تو اچھا نہیں ہے. یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. یہ جابر یہ والی حدیث نہیں اب دیکھیں نا میری مسلم بات کی ہے, سنیں. 150 رقم الحدیث ایک منٹ 156 بات تو لکھا ہوا ہے. سنیں. او میڈم جی بات تو جی سن جی. لیا کریں. نہیں بریکے نہیں ہے مسرور بھائی. آپ عربی پڑھے نا, ترجمے میں ہمیں کیا پتا عربی میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا, ترجمہ گڑبڑ کیا ہوا ہے مولوی صاحب نے, ہمیں کیا پتا. اچھا میں عربی لکھ کے پڑھ لیتی ہوں پہلے. عربی ہے سامنے, عربی پڑھ لیتی ہوں. جابر بن عبداللہ یقول سمعت النبی یقول صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلوا علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت. قال فینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام فیقول آمرهم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امر اتکرمت اللہ حاضہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. اور فرمایا کہ پھر جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے, لوگوں کا امیر ان سے نماز پڑھانے کے لیے عرض کرے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں بلکہ تم ایک دوسرے پر امیر ہو. یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. تو اس میں کون سے عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پوچھ رہے تھے براؤن کے سرخ, اس میں تو نہیں لکھا ہوا. لمبے بال والے چھوٹے بال والے, اس میں تو نہیں لکھا ہوا. سینہ چوڑے مریم اتریں گے, اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. میں تو پوچھ اچھا رہا ہوں یہ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے, یہ تو لکھا ہوا ہے نا. اتریں گے عربی میں نہیں لکھا ہوا. اتریں گے عربی میں نہیں لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا بتائیں کہاں سے اتریں گے؟ آسمان میں ہے نا, تو ادھر سے اتریں گے. یہ کہاں ہے؟ ثابت تو وہی نہیں آسمان میں ابھی تک. یہ تو ثابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے, وہ تو میرے بھائی کو اس بھی کے بعد اٹھایا ہے. یہ تو ہر کسی کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہی تو پوچھ رہے تھے ہم آپ سے. زندہ اٹھایا ہے, زندہ اٹھایا ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہہ رہا ہے میں نے زندہ اٹھایا حضرت عیسیٰ کو؟ میں نے ابھی قرآن شریف پڑھی ہے, حدیث کہیں زندہ نہیں لکھا ہوا. 7373. کون سی حدیث 7373 کی؟ قرآن شریف ابھی میں نے پڑھا ہے, اس میں کہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکے. ہاں قتل نہیں کر سکے, صلیب پہ نہیں مارا, کہیں نہیں لکھا کہ میں نے زندہ اٹھا لیا, کہیں نہیں کہا. اچھا انہوں نے کہا کہ قتل نہیں کر سکے لیکن صلیب میں نہیں مارا, لیکن وہ ایسی موت مرے اور میں نے ایسی. اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کیا؟ زندہ بولا ہی نہیں اللہ نے. جب اللہ زندہ نہیں کہہ رہا تو آپ کیوں زندہ؟ مردہ بولے انہوں نے مردہ بولے. کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکے, فرعون حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا, حضرت یوسف کے بھائی ان کو قتل نہیں کر سکے, تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا آسمان پہ اپنی طرف. یہ ترجمہ ہوگا پھر. قتل نہیں کر بات کریں حضرت, اس کا قتل سے کیا تعلق ہے؟ قتل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ وہی ایک لمحہ تھا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مار دیا ان کو,
लेकिन ईसा कहते हैं वो ही यही मेन चीज है जिस जिंदा पे कहाँ लिखा इख्तिलाफ हुआ करते है? हैं। जिंदा नहीं लिखा हुआ, जिंदा नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने उनको नहीं मारा, वो कत्ल नहीं हुए ना वो हाँ, मार मान सके रहे हैं, उनको। नहीं मारा, जिंदा उठा लिया, ये बताना है आप। ये तो इख्तलाफ ही नहीं है, नहीं मारा, वो तो हम भी कह रहे हैं नहीं मारा। ये आपने बताना है कि देखिए जिंदा उठाया। अगर चले आप अपनी बात करते हैं ना, देखिए मैं कहूँ वो उसको नहीं मारा गया, उसको उठा लिए, ठीक है, अब क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है? हाँ, दर्जात को उठाया ना, बंदा उठता ही नहीं है रफा से, वही तो बताया था मैंने आपको। अल्लाह ताला ने रफा कहा इसके दरजात को, से, रफा से दर्जा। अल्लाह अच्छा, ये एक अल्लाह मिनट। ताला ने कहा इसके दरजात को उठा लिए। ये क्यों, कहाँ से वर्ड लेकर आते हैं? मैं बताता हूँ आपको, 2 सजदों के दरमियान दुआ पढ़ती हैं नमाज में। 2 सजदों के दरमियान ये बैठती हैं तो दुआ पढ़ती हैं, अनम्यूट कर लेती हैं जब सवाल आता है तो। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े ज़रा। कौन सी दुआ जो पढ़ती हूँ? हाँ जी, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वाहदिनी वाफिनी वरज़ुकनी। आगे वराफानी नहीं पढ़नी। जो काम का फिक्र है वो तो खा गई। वराफानी नहीं पढ़नी है। कौन सी? अल्लाह मगफिरली वरहमनी, ये दुआ बहुत बड़ी है, आप जैसे जितनी भी हाँ, पढ़ो वो उसमें कोई इशू हाँ, नहीं उसमें है, ठीक उसमें है? वराफानी, हाँ उसमें जी। वराफानी भी आता है ना, ए अल्लाह मेरा रफा कर। हजूर ने वरफानी भी की हुई है। यार मसरूर भाई दुआ मेरा एक पढ़ना सवाल जरा। था इसके पर, मसरूर दुआ भाई मेरा एक पढ़ना। सवाल था। अच्छा एक मिनट जरा, टिया साहिबा मेरा एक सवाल है, जवाब देंगी जरा? अल्लाह की माइक तो खोले ना, माइक खोले जरा, माइक तो खोले। यार माइक ही बंद हो गया। यार नीचे 8 लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है। उठा रही वो है। सारे गालीबाज हैं कुछ। नहीं, वो नया एक आए हैं, उनको उठा दिया। एक मिनट जरा। सलाम जी, सलाम दोस्तों सारे की। जी भाई वालेकुम सलाम। यार जब भी मेरा सवाल आता है म्यूट लगा लेती हैं ये। ऐसे नहीं होता अपना अब्बास साहब, इंतजार करें अपनी बारी का। चलो मैडम ने बात नहीं करनी। इन्होंने भाई ने एक हदीस बताई है, ठीक है, इन्होंने लिखा है नरेटेड। मेरा एक सवाल है ना, मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब देना। मैंने किसी बदतमीज इंसान से जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता उससे मैंने बात नहीं नहीं मैंने करनी, कोई please। आपसे बदतमीजी नहीं नहीं की। मैंने आपने नहीं करनी बात, नो मीन्स नो। चलें, अच्छा मैं फिर सिर्फ इल्मी बात करने आई हूँ। अच्छा, वो जो मैंने बताया 2 सजदों के दरमियान फिल्मी नहीं तो फिल्मी बात करने आई है इधर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है कि वो सिर्फ इसी की फिल्मी बात कर रही है। जी भाई, म्यूट हो गया आपका, आवाज नहीं आ रही। भाई इसमें कौन सी क़यामत की निशानियों वाला बताइए, जो 7373 हदीस बताइए, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ। आपको मैंने कहा था कि 2 सजदों के दरमियान जो दुआ है उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, वरफ़ानी, या अल्लाह मेरा रफ़ा कर। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उठे आसमान ये पर। दुआ जरा ये दुआ पढ़ना जरा क्या बता रहे हैं? गूगल मारें, गूगल खोले, गूगल में लिखे 2 सजदों के दरमियान की दुआ। मसरूर भाई एक मिनट जरा, मसरूर भाई ठीक है, इसको ना थोड़ी देर बिठा के रखे दूसरे दोस्तों फिर आप बैठे हैं। बहुत देर हो गई मसरूर भाई, नीचे लोग कह रहे हैं यार बोर हो गए। हाँ, बहुत लंबी बात होगी, सही बात। जी जी, ये म्यूट क्यों लगा थोड़ा चेंज देते हैं? करें मसरूर भाई। हाँ थोड़ा सा ना मसरूर भाई थोड़ा चेंज करे यार। जी नादिर चलो भाई भाई आप बात बोलेंगे, करें। आप नादिर भाई आप नहीं नहीं आप बोलेंगे? बात करें, चलो भाई नहीं कर नहीं लें आप बात नादिर भाई, करें। आपने भी नीचे किया। कमेंट पढ़ लो, लोग कह रहे हैं यार ये ना बहुत देर हो गई। अच्छा, चलें, इनको आप कहें नादिर भाई जाना करें, नहीं है, सब- बेशक बैठे हैं अभी, जाना नहीं, लेकिन कि दूसरों को हाँ जी, रोटेट कर गया। नादिर भाई करें, आप बात करें, मैं फिर करता हिसाब हूँ। से नहीं नहीं चलो भाई मैं म्यूट लगा रहा हूँ, म्यूट लगा रहा नहीं हूँ। कर रहे हैं नादिर भाई, मैंने आपको बताया था। चलो भाई मैंने आपको जो बताया। ठीक है ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट दोस्त कौन है जी, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बुशी बॉय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। नहीं, बुशी भाई का नंबर है तलब पे, अच्छा यार, मैं काफी देर से बैठे हैं। वो तो बैग चले गए लगता है। साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, चलो जी। बुशी भाई फिर नीचे बैठ जाएं। अब बेशक लेट कर दें मुझे। हाँ जो सुन रहे हैं अहमदी के नीचे जी भाई। जी जी। नीचे बैठ जाएं। हाँ मसरूर भाई। एक मिनट सब्र करो यार, एक मिनट सब्र करो यार। नहीं, अच्छा, सवाल शाहिद है या भाई, सुन रहे हैं? सवाल है शायद। मैंने एक छोटा सा सवाल है। कर ले। हाँ तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था तो सलीब टूट जानी थी, ये भी एक निशानी थी क़यामत की, ये तो नहीं हुआ।
शरद भाई, जी शरद भाई, इनके बाद ना ये जो है ना शहजाद भाई का नंबर है, उसके बाद अब्बास भाई का नंबर है, उसके बाद उस्मान भाई का नंबर है। ठीक हो गया जी। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई कि जब ऐसा टाइम अगर दे दें आप। सुबह घुमा दें एक दफ़ा ज़रा। जब इमाम महदी ने आना था, मसीह ने आना था, तो सलीब को उसने आकर तोड़ना था। तो अब हम देखते हैं कि सलीब का तोड़ना किस तरह होता है। अंबिया जो होते हैं, क्या वो कोई बंदों को मारने के लिए आते हैं? क्या वो बंदे कत्ल करने आते हैं? क्या उनका काम लोहे की या लकड़ी की सलीबों को या किसी अमलाक को तोड़ने का होता है? अगर इसका माना लिटरली लिया जाए तो बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। इसका ज़रूर हमें तावील करनी पड़ेगी। तावील इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा, ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस वजह से मबूस किया, वो वजह थी दुनिया पर हक़ को बयान करना, शिर्क को ख़त्म करना और अल्लाह ताला की वहदानियत को दुनिया पर मुकद्दम करना। हमारे प्यारे नबी के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ये वो नबी है जो दूसरे तमाम अदियान पर, यानी दीनों की जमा अदियान, उन पर इस दीन को गालिब कर देगा। ये हजूर के मुतल्लिक है कि तमाम अदियान पर इस दीन को गालिब कर देगा, यानी दीन इस्लाम को। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि तादाद के लिहाज से तो हम मुसलमान मिलकर भी ईसाइयों के से गालिब नहीं आ सके, तादाद के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिहाज से उस बात को पूरा किया है जो उनके बारे में कुरान और हदीस में दर्ज है। तो हाँ, हमारे प्यारे नबी ने शिर्क के मुतल्लिक, अल्लाह ताला की वहदानियत के मुतल्लिक या और हर किस्म के दलाइल उस मुकम्मल दीन में देकर इस बात को साबित कर दिया और इसके कंप्लीट दलाइल दे दिए, और दुनिया पर जो गलबा था वो इल्मी गलबा आपने दे दिया। तादाद का गलबा तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही नहीं सके और ना ही देना कोई वो लाजमी था। इसी तरह आने वाले मसीह और महदी के मतलब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया था कि वो सलीब को तोड़ेगा। वो सलीब को तोड़ना जो था, हजूर ने अपनी एक हदीस मुस्लिम की 73 में फरमाया था कि अगर दज्जाल मेरे होते हुए आएगा तो मैं दलाइल से उसका खात्मा कर दूंगा। वो बात अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने उस मसीह और पाक मसीह के लिए भी फरमाई कि वो आएगा तो वो दज्जाल का खात्मा करेगा, खंजीर को ख़त्म करेगा, दज्जाल का, और वो जो सलीब को तोड़ देगा। अब यहाँ पे मुराद सलीबी अकायद हैं। वो जो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं हज़रत यसू को, वो बेटे के मुतल्लिक दलाइल बयान करेगा जैसा कि हजूर ने किया। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलाम ने सलीब को बखूबी तोड़ा। उनकी 6 किताबें मैंने पढ़ी हैं जो सलीब के रद्द पर हैं, और सलीबियों के पास एक भी दलील उनकी जितने दलाइल थे उनके मुकाबले में नहीं है। ये हो गया कसर सलीब। साहब लेक्चर सवाल जो अब होने चाहिए, यहाँ पे लेक्चर हो रहा है। वही खत्म जाने थी, उन्होंने सब मुसलमान हो जाना था। ये तो कोई एक बात भी नहीं साबित हुई ना। आप उल्टे दलाल देते हैं, फिर मैं जा रही हूँ। आप नहीं बताते। जी टिया, आपने क्या बात करनी है, आखिरी कर लें। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अभी इन्होंने, मुझे जो होस्ट है उन्होंने कहा कि 2 दज्जाल आएंगे, सॉरी 2 मसीह आएंगे, ठीक है। दोनों मसीह जो है ना वो डिफरेंट होंगे, तो इसका मतलब है कि नबूवत का सिलसिला बंद नहीं होगा। जो दूसरा मसीह आएगा, मैंने ये नहीं कहा 2 मसीह आएंगे, नहीं, हाँ मतलब दूसरा मसीह होंगे, वो वाले मसीह नहीं होंगे। हजूर तो इससे तो ये होता है। टिया साहब, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन जो लग रही है। हजूर ने ना 2 हमें बताए हैं, 2 वजूद। एक वो वजूद जो आपने बाकी तमाम अंबिया के साथ आसमान पर देखे, उनमें आपने कोई तखसीस नहीं की, अलग नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि हज़रत ईसा जो थे वो जिस्म के समेत थे। जब आपका भी ये मानना है कि वो आसमान पर हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौका पर यही बात फरमाई कि मैंने दूसरे आसमान पर ईसा, मूसा और इब्राहीम को देखा। ईसा नहायत सुर्ख घुंघराले बाल और चौड़े सीने वाले हैं। तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन से ईसा इब्न मरियम है। ये वो ईसा इब्न मरियम है जिनके बारे में कुरान कहता है व रसूलन इला बनी इसराइल। अब हम देखते हैं कि आने वाले मसीह जो कि बाद की हदीस है 34-40, उसमें हजूर क्या फरमा रहे हैं। हजूर फरमाते हैं कि मैंने कल काबा के पास
बैतुल्ला के पास ख्वाब में देखा, ख्वाब में हाँ जी, देखा। हजूर फरमाते हैं, हजूर लेटे, मैं आपको सारा वाक़या सारा बता दूं। हजूर काबा का तवाफ कर रहे थे, थक कर लेटे तो हजूर ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उनको क्या नज़ारा दिखाया, वो खूबसूरत ख्वाब ये था कि फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स, गंदमी कलर के शख्स को देखा, जो गंदमी कलर के लोगों में शक्ल के एतबार से नहायत हसीन व जमील, बाल सीधे शानों तक लटक रहे और जैसे उसमें पानी पानी हो, दो लोगों के कंधों पर हाथ रखकर बैतुल्ला का तवाफ कर रहा था। पूछा कौन है? पूछा किसका जाता है? पूछा उसी का जाता है जिसको इंसान ने पहले कभी देखा ना हो। टिया साहबा आप परसों आई थी, आज आप आई हैं, हमने फ़ौरन कहा है जी टिया साहबा आपने कल की परसों की मेरी बात वो बात सारी खोल के रख दी। अब हमारे प्यारे नबी ने, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा को आसमान पर देखा हुआ था, बाकी तमाम अंबिया की रूहों के साथ, उस रूह को भी देखा था, उनका हुलिया भी आपको याद था। जब आप ख्वाब से बेदार हुए तो आपने फरमाया कि वो गंदमी कलर के थे। बेदार होकर बताई हैं ये बातें, ख्वाब में बता दी हैं साहबियों को बेदार होकर बताई हैं कि वो गंदमी कलर का शख्स था। साहबा को बता रहे हैं वो गंदमी कलर का था और उसके बाल सीधे थे और उसका जिस्म इतना चौड़ा नहीं था। पूछा कौन है? पूछा किसका जाता है? जिसको पहचानते नहीं। तो साहबियों ने क्या बताया, दो लोगों ने क्या बताया जिनको हुजूर बाद में कह रहे हैं कि दो वो थे, फरिश्ते थे। फरिश्तों ने बताया कि मसीह इब्न मरियम है, ये नाम फरिश्तों ने दिया है। अगर वही सेम वजूद होते तो हमारे प्यारे नबी को गलती नहीं लग सकती थी। जब बात उनकी कोई ज़ाती इज्तिहाद नहीं था, ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी की बात थी, तो वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? इसलिए हमारे नबी की बात सच्ची है। टिया साहबा आपको इसमें थोड़ी सी गलती लगी है। तो जो दूसरा वजूद है उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि उसके पीछे पीछे एक और शख्स था जो एक शख्स के कंधों पर हाथ रखकर बैतुल्ला का तवाफ कर रहा था और वो पूछा कि कौन है? उसकी एक आंख उभरी हुई थी अंगूर के दाने की तरह। तो हुजूर पूछते हैं कि ये कौन है? तो फरमाया कि दज्जाल है। अब आपका एक सवाल था कि दज्जाल जो है वो तो काबा में दाखिल नहीं हो सकेगा, तो हुजूर ने कैसे देखा? इसका जवाब ये है, इसका भी जवाब है। तो इसका क्यों जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कंधे पे हाथ रख के इसी तरह तवाफ करेगा? नहीं, हजरत ईसा के कंधे पे उसने नहीं हाथ रखा, उसने भी किसी एक शख्स के कंधे पर हाथ रखा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दलील है कि जो दज्जाल है ना, वो काबा को गिराना चाहता है, वो इसलिए काबा का तवाफ कर रहा है। और वो जो मसीह है वो काबा को बचाना चाहता है, वो इसलिए काबा का तवाफ कर रहा है। तो यहाँ पर वो लिटरली माने नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर यही माना बनते हैं कि वो जो काबा का तवाफ कर रहा है दज्जाल, इसका मतलब है वो काबा को पीछे पीछे है, वो काबा को गिराना चाहता है। और हकीकत भी यही है। असल में ना आप लोग दज्जाल लिटरली माने इसके नहीं लिए जा सकते, तो फिर उनके हुलिये के कैसे लिए जा सकते हैं? वो तो हुजूर ने साफ बताए हैं उसमें बेदारी की हालत में। मैं तो बता रहा हूँ, ख्वाब नहीं बता रहे हुजूर कि मैंने ख्वाब में ही हुजूर ने लोगों को बता दिया, उठकर बताया है। ये कहा कि वो एक नया बंदा आएगा, उन्होंने ये बोला कि वो ईसा इब्न मरियम कोई नए होंगे। जो तो हुजूर को आखिर में कहना चाहिए था ना कि गंदमी रंग ना लेना, वही ईसा इब्न मरियम आसमान से आएंगे। नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का सबको बताया गया है पहले ही। सैयद अली साहब लेक्चर की बात तो नहीं है, सवाल जवाब की बात है। नज़ूल मसीह की निशानियां बताई गई हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नज़ूल मसीह की कोई एक निशानी भी मिर्जा साहब पे कोई मैं अभी निशानियां बता देता हूँ। मैं निशानियां बता कौन सी हमें जो पता है सर, जो हमें मुझे सवाल करने में मेरा नंबर। उस्मान भाई आपका तो नंबर ही नहीं, वैसे उस्मान भाई ज्यादा नहीं ऊपर वाले दोस्तों के साथ। उस्मान भाई आपका नंबर नहीं, पहले आप नंबर को छोड़ दे सर। मैं काफी देर से नबूवत का सिलसिला जो खातमुन नबिय्यीन वाला है वो सही नहीं है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो कहते हैं हुजूर की खातमियत अलग है। आप लोग हजरत ईसा को इसीलिए ला रहे हैं। शुरू में ही टिया साहब आपको मैंने ये बात बताई थी। अच्छा टिया साहब आप थोड़ा वेट करें, आपको मजीद दोबारा आएंगे दूसरे दोस्तों की तरफ भी थोड़ा। मैं इनको मसूद भाई, मैं इनको सबको जवाब देता हूँ, इनके सवालों का सारा एक ही जवाब दो। आप कौन है? मैं अब्बास हूँ। मैं पहले अहमदी भाई हैं जी। मैं पहले मुसलमान था, तो मैंने मिर्ज़ा साहब को सुना। और ये जो लोग कहते हैं ना, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है। ये जितने भी लोग इनको कहते हैं ना कि मसरूर साहब के बारे में और जितने भी हैं सब के बारे में, और मिर्ज़ा साहब के बारे में कि वो टॉयलेट में मरे, वो गलीज थे, वो मुर्तद थे, वो काफिर थे, या किधर गए? हेलो, उनको पिक आउट कर दिया गया। किधर गए? उनको उतार दिया गया।
उतार दिया गया। अच्छा भाई उनको उतार दिया है, मेरी बात सुन ले, मेरी लंबी बात में है अच्छा अच्छा, आपसे पहले ना वो ऊपर जो दोस्त बैठा है टिया के साथ, उसके साथ थोड़ी बात होगी उसके सवाल का। भाई तुम्हारे एक भाई के सवाल का जवाब दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं तशीब भाई की तरफ। जी, ये टिया साहब से शाहिद साहब जो नीचे बैठे हैं। हाँ मसरूर भाई, क्या हाल है जी? मसरूर भाई है, अब्दुल्ला है। तलत क्या हाल चाल है? ठीक है, तलत खैरियत है? जी जी जी, खैरियत। पहले से बेहतर भाई, दुआई खा रहा हूँ। तलत आगे में चलें। बात यह है कि आपसे बात होती रहती है, हम भी आते हैं रिसर्च करके, आप भी माशाल्लाह रिसर्च करके बैठे हैं। बात यह है तलत भाई कि जितनी भी 4 किताबें हैं आसमान से नाजिल हुई, ऐसी ही है। जी जी, आगे बात करें। और इन चार किताबों में जितनी भी नाजिल हुई हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के ऊपर भी नाजिल हुई है, ऐसे ही है या मैं गलत हूँ? जी जी, आगे बात करें, आप बात करें आगे। सवाल रखें अपना, क्या सवाल और है? अल्लाह ताला ने वादा किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सूरह अल बकरा आयत नंबर 124 के ऊपर कि आपके ही होंगे पेशवा। पेशवा बोलते हैं इमाम को या नबी को, आपकी नस्ल से, ज़ुरियत नस्ल को ही कहते हैं, ठीक है ना? तो आप मेहरबानी करें, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि भाई कुरान मजीद की ज़बर ज़ेर के ऊपर बहस करता रहूँ। मैं रिसर्च करता हूँ, जो सवाल मुझे मिलता है वो मैं लेकर आता हूँ। तो आप मेहरबानी करें कि या तो मिर्ज़ा साहब को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कहीं से सजरा मिला दें, या फिर इस आयत को झुटला दें कि भाई नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक ने वादा जो है ना ऐसे किए। जी बोलें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जो भी इधर बैठकर ये कहता है ना कि नबूवत बंद है, उसके लिए मेरे प्यारे भाई अहले तशीब भाई बहुत ही खूबसूरत बात लेकर आया है कि जो नबी भी आएगा, यानी नबूवत बंद नहीं हुई, जो नबी भी आएगा इसने वहाँ से उस आयत से ये समझा है कि वो कहाँ से आएगा। जी बताएं, दोबारा सबको बताएं कि नबी जो आ रहा है वो कहाँ से आना चाहिए। नहीं, नबी की बात नहीं हो रही, मैंने कहा नबी या इमाम। पेशवा नबी को भी बोलते हैं, इमाम को भी बोलते हैं। हाँ, हज़रत जो इब्राहीम आएगा अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। आयत ठीक जरा है, पढ़ेंगे, आयत पढ़ के जब सुना दो इनको, जरा इनको आयत पढ़ के सुनाएं इनकी। देखें, ये अभी मुझे कह रहे हैं सारे कि नबूवत बंद है, मेरा भाई जारी कर रहे हैं। जी बोले, आयत पढ़े। नहीं, बंद की बात नहीं कर रहा ना, मैं जारी की बात कर रहा हूँ। मैं नबी की साथ जो अल्लाह ताला ने वादा किया है। मिर्जा साहब का दावा क्या है? आपकी मिर्जा साहब का दावा क्या है? जी, नबी होने का। मिर्जा साहब का दावा है कि मैं उम्मती हूँ, नबी होने का। आप मुझे ये बताएं, अब आप मुझे बताएं कि वो आयत में क्या लिखा है। आयत पढ़ें जरा, एक मिनट पढ़ दें, पढ़ दें। वैज़ अख़ज़ना मिनन नबीना मीसाक़हुम, मिनन नबीयीना मिसाक, मिनन नबीयीना, जब नबियों से मिसाक लिया गया। किससे? जी जी जी, नबियों से। आगे क्या है? आगे क्या है? वमिन नूहन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़ा गलीज़न। ठीक है। अगर और मैं जब हमने नबियों, मैं समझ गया तर्जमा, मैं समझ गया तर्जमा। अगर मैं आपको आगे आपको मैं ये साबित कर दूं कि ये मिसाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया था, फिर दिखा दें। उन्होंने किसकी इताअत करनी थी? मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो इसमें वादा किया है ना, वो इब्राहिम की ज़ुरियत में ही रखा है कि भाई। मुझे इसकी आपकी बात की समझ नहीं, ये है मिसाक। इसमें आप जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप थोड़ी देर पहले ये बात हमें बता रहे थे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इसमें आपने, हमें पता कौन सी आयत देनी थी अभी, कि जो भी आएगा ना नबी, अब ये नबी हैं, शुरू में नबी लिखा है, ये भी नाम आपने नबियों के हैं, वो हज़रत इब्राहीम की आल से आने हैं। वो कहाँ लिखी है बात? इस आयत में तो नहीं निकली। इसमें से तो अल्लाह ताला ने नबियों से मिसाक लिया, उन नबियों के नाम लिखा दिए। आयत सुने ना, आगे सुने, आयत आगे सुनाए, आगे सुनाए। वाजिबतला इब्राहीम वाजिबतला इब्राहीम बिकलिमातिन, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिकलिमातिन फअतमहुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमाम। आयत में गलत पढ़ रहे हो आप। काला व मिन ज़ुरियती, भाई आयत नंबर 124। क्या कह रहे हैं नादर भाई आप?
कुछ नहीं पढ़ा। आयत नंबर 124। अच्छा, तो इसमें कहाँ लिखा है कि जो आना है हजरत इब्राहिम की जात से आना है? कहाँ लिखा है? आल से आना है, कहाँ लिखा है? जी, काला व मैन जुरियाती काला ला यनालु अहदिज जालिमीन। अल्लाह ताला ने कहा हाँ मेरा वादा है, लेकिन वो जालिमों में से नहीं होगा। ठीक जो है, जालिम होगा मैं उसको नहीं दूंगा। ठीक तो आप मुझे है, यही दिखाएं, ठीक है। मिर्जा साहब जालिम या नहीं तो थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आप बताएं कि हाँ भाई ये जालिम था इसलिए उम्मत से आ गया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मुझे सारी समझ आ रही है, तर्जमा कहो तो मैं पढ़ कर मुझे जी सारी समझ आ रही बोले है। देखिए बात सुने, जो आपका पहला सवाल था ना, वो आप ना उससे आप थोड़ा हट जी गए हैं, उसको उसकी तरफ आप आ नहीं रहे। मैं ना, अगर आपका पहला सवाल ये था कि अब जो भी आएगा, पहले आपने कहा नबी आएगा, फिर आपने कहा जो भी शख्स आएगा, इमाम मैंने आएगा। कहा नबी या अगर इमाम। टाइम देंगे कि हम चले जाएं फिर? नबी या पेशवा इमाम आगे वाले को कहते हैं ना, पेशवा हाँ, किसको कहते हैं? आगे वाले को कहते हैं। हाँ जी तो साहब टाइम मिलेगा कि यार, चले अब जाएं जो फिर? पहले जिससे हो रही है जनाब, उससे क्या करें उस्मान भाई? नहीं सर, हम भी तो बैठे हुए हैं ना, फिर हाँ, आपको ये भी बात पता होना वैसे आप यार अजीब सी कर रहे हैं, आपकी बात क्योंकि समझ नहीं आ रही। थोड़ी देर म्यूट लगा लें आप। जी उस्मान साहब बोले, आप क्या कहते हैं? तलत साहब अब बैठी हुई थी टिया, तो मसरूर साहब बोल रहे थे। जी बोले सर। जी अब आप खामोश हो गए भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपका म्यूट लग गया है। भाई आपने उसको म्यूट लगाया हुआ है। उस्मान साहब आप म्यूट लग गया अल आपका। बकरा आयत उस्मान भाई, नंबर 124। उस्मान साहब आपका म्यूट लग गया है। उस्मान साहब आपका म्यूट लगा हुआ है, या उनको कॉल आ गई, पता नहीं अब क्या चक्कर हुआ है। उस्मान साहब, हेलो उस्मान साहब आपका म्यूट लगा हुआ है भाई। भाई आप मेरे सवाल का जवाब दे हाँ दें। जी, मैं आपके सवाल का क्या सवाल क्या है इसमें? आपका सवाल क्या है इस मैं आयत आपको में? उर्दू तक मिसाकन नबी, ये किसने म्यूट, कौन म्यूट कर रहा है यार? ये तो आप लोग को पता कि कौन म्यूट कर रहा है। मैं नहीं कर रहा यार, आपको खुद ही हो जाता है आपका। आप नहीं होता तो म्यूट कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं। ये तो कोई बात नहीं कर रहे ना आप, ये ड्रामेबाजी चलाई हुई है इधर। नहीं जवाब दोस्त तो मौजूद नहीं है, मैं इधर से चला देते हैं, कोई इधर से, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मेरे दोस्त आप थोड़ा म्यूट लगा लें, खुद ही लगा लें। मैं नहीं म्यूट किसी को नहीं लगाया, आपने खुद ही लगाया, मैंने नहीं लगाया। आप खुद मैं म्यूट आधा घंटा हो गया म्यूट में बैठा हूँ। नहीं, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। हाँ क्या तो जी आपकी खातिर यार, एक बंदा बोल लड़ेंगे, जंग होनी है, ये सारी बातें आप फलान है, ढिमकान है, अच्छा कमाल है। शाहिद भाई आप ये बताएं, क्या नाम है आपका? जी हैरतशी भाई आप ये बताएं, उनका हजरत शजरा ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक की नस्ल में से हैं। नहीं शजरा बताएं, उनके वो भी शजरा हजरत मिलाएं इब्राहिम ना। अलैहिस्सलाम से। शजरा मांगा था ना मिर्जा साहब का, शजरा में आपको दिखाएं शजरा। जी शजरा आपको मैं मिला उनके वालिद का क्या नाम है? अलैहिस्सलाम का हजरत जी शजरा लगा हजरत दें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैं मिला रहा हूँ। उनका शजरा लगा जी दें, मैं लगाता हूँ। लगाएं उनके वालिद का, दादा का, परदादा का, ऐसे सबका नाम लगाएं। भाई मैंने जो कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। शजरा या तो आप लगाए इसको ना, रद्द करें कि नहीं, मैं शजरा, नहीं ये मानता। रद्द कर रहा हूँ ना, शजरा लगाए उनका। ठीक है, उनका मैं 2 शजरा मिनट लगा में दें, शजरा जो है टोटल देख के आपको दिखा दूँ। लगा दे हजरत ईसा ठीक है। का शजरा लगा दे, ठीक है। शजरा उनका लगा दे। ये नीचे मैं तलब भाई एनोनिमस एक आईडी गालीबाज लग रहा है मुझे ये। नादर भाई करनी है आपने बात, करें यार, मैं तो काफी देर से कर रहा हूँ। नादर भाई ये शजरा तो मेरे पे छोड़ दे। एनोनिमस जी वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं ड्रामेबाज नहीं हूँ। पहली नहीं बात ड्रामेबाज नहीं, सॉरी मैंने कहा गालीबाज। एक ना मेरी बात सुने। एक बंदा एनोनिमस के नाम से उसकी आईडी, वो गाली देकर गया है, तो वो मुझे लग रहा था आप शायद वही हैं। नहीं मुझे एक्चुअली बिल्कुल बस छोटी सी बात करनी है, इसके बाद आप अपनी ब्रॉड कंटिन्यू रखिएगा। बात ये है, तिया साहिबा जो भी आपसे बात कर रही थी, इनसे आप यकीन करें कल हमारी कोई 1.5 से 2 घंटा बात हुई है।
ठीक है, ब्रॉड पे, यही वफात मसीह के हवाले से। आप पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें, कौन है, अहमदी है गैर अहमदी है? जी जी, आई एम वन ऑफ यू, वन ऑफ देम, ओके। तो ये है कि कल हमने उनसे बहुत देर बात की और इन्होंने लिटरली बहुत पकाया विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। वो यही करती हैं, बार बार ब्रॉड्स पे जाती हैं। आपके पास आई थिंक 400 प्लस लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आई थिंक ये एक आपको करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट वे में, अगर कोई इंसान बात नहीं सुन रहा तो ये इस तरह से, शायद इनका ये भी एक मकसद है कि सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोगों का ना। तो कल इन्होंने अच्छा मेरी बात सुन ले एनोनिमस, मेरी बात सुने। देखे, आपने कितनी बड़ी कभी लाइफ में ब्रॉड लगाई है आपने? जी, हम लोग तो करते हैं। कितनी बड़ी ब्रॉड होती है? इस लेवल की नहीं की जिस लेवल की आपकी है। जी सुन ले, सुबह जरा म्यूट लगाए, इधर कॉल आ रही है आपको। सुबह ही है, इधर पास ही नहीं। तो मेरी बहन, बात ये है कि हम लोग जो कुछ कर रहे होते हैं ना, हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उतारें इसको, पकाएं, ये वो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज़ नहीं देख रहे होते, हम बहुत सारी चीज़ें देख कर, बाज़ औक़ात किसी से बहस करने का मकसद ये नहीं होता कि उसको हिदायत दे या उसको हिदायत पर लाने के लिए बहस की जा रही है। कुछ और मकासद होते हैं, कुछ और वजूहात होती हैं, वो सारी हम यहाँ पर खोल कर बयान नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों के, वही मैं कहता हूँ कि आप लोग के जो मशवरे होते हैं ना, वो मशवरे, अभी आप लोग इनएक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड के अंदर, अभी आपका इतना तजर्बा नहीं है। जब आप लोग आएंगे ना, ये मैंने आपको फील नहीं हुआ, मैंने मसरूर भाई को फ़ौरन कहा कि ये ऊपर जो दावत है ये लगाए जी। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ खोल के नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग इनएक्सपीरियंस है ना, जिनका कोई तजर्बा नहीं है, मैंने कल भी बहुत मेरा मीटर आउट हुआ था कि जो लोग नीचे बैठ के मशवरे देते हैं ना कि ये पका रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो यहाँ से चले जाए। हमें पका रही है ना, हम बहस कर रहे हैं ना, जब हम नहीं थक रहे तो आपको क्या मसला है? लेकिन जो है ना, टोटली इलॉजिकल बात, जबकि एक बात को मेरी बहन, आप इलॉजिकल बात आप ना सुने, या तो सैकड़ों ब्रॉड लगी हुई है मेरी बहन, आप वहां चली जाए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, अगर घंटे डेढ़ के लिए आपने लाजमी यहाँ टिकटॉक पे रहना है कोई? एक मिनट, मतलब एक मिनट यार, आपने लाजमी यहाँ पे रहना है, एक घंटे के लिए आप कहीं और चली जाए? नहीं, लेकिन आप हमें हमारा काम करने दें। नहीं, आप बात करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि एटलीस्ट कोई पॉइंट तो हो ना उसमें। चले ठीक है, ओके, ये चीज़ है, या चले ठीक है, ओके जी, मेहरबानी। हमें पता है हमने क्या करना है, हम आपसे मशवरा नहीं लेंगे ना, हमने आपको मशवरा मानना है। जो मर्जी आप कर लें, हमें हमारा काम करने दें। पॉइंट तो हो, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने लाजमी 2 घंटे टिकटॉक देख रहे हैं, कुछ और देख लें, ड्रामा देख लें, आप फिल्म देख लें, आप हमें हमारा काम करने दें। जिस मकसद के लिए उसको वो आई, ठीक है, एक बंदे की कन्फ्यूजन है जो भी है, लेकिन हमारा भी कुछ उसमें मकसद है। आपको लाजमी हम यहाँ पर सारा खोल के बताएं आपको? आप लोग अभी बहुत ही जूनियर हैं इस फील्ड के अंदर। ये मैं कोई खुदा न खास्ता मैं तकब्बुर की राह से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग जूनियर हैं, आपको पता नहीं है कि काम कैसे करना है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ करनी, क्या नहीं करनी। आप लोग सिर्फ एक जाविये से सोचते हो। जी तलब भाई, करें, दूसरे बंदे से बात करें। मैंने जी, ये बादशाह नीचे आया, बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम। बादशाह, ओ बादशाह। और यार उसको कहाँ तलब भाई आपने शदरा लेने भेज दिया, वो किधर निकल गया, वो पता नहीं चौथे मोहल्ले चला गया भाई। इधर को छोड़ें उसको बाद में मैं ही करूंगा उसके साथ, आप करें, दूसरा बंदा लें। तो जी, ओ बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। ओ भाई बादशाह साहब बूटों की आवाज ही भेजता रहेगा भाई, जबान क्या कर रहा है? तो मेरे कोई समझ आता नहीं है भाई। ओ म्यूट लगा, म्यूट मसरूर भाई। ओ मसरूर भाई क्या कर रहे हो यार? तलब भाई कॉल करे जरा। सलाम कर, म्यूट तो लगा ले यार। तलब भाई उसको कॉल करे मसरूर भाई को। अच्छा बादशाह साहब बोले यार। जी
हाँ मना करते हैं हाँ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मसरूर भाई, अच्छा मसरूर भाई क्या हो गया यार, म्यूट लगाए यार। तलत भाई यार किधर, तलत भाई किधर चले गए? मैंने की है कॉल मसरूर भाई को, मैंने की है कॉल ये। अच्छा अच्छा ठीक है जी। और बादशाह बोल बोल। तो और क्या, तू अपना नाम, तू बादशाह है, तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या कौन सा बादशाह है, किस मुल्क का तू बादशाह है भाई? तेरी अम्मा का फुद्दा है। तेरी ऐसी की तैसी मैं बेगैरत इंसान, तू कौन सी, तेरे पास कौन सी जागीर है? 4-5 बकरियां लेके तू बैठा हुआ है, तू कौन सा बादशाह है? लकीर के फकीर जी। ओए नीचे अपना इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल नशई है, नशई टोन नौकर आया हुआ। जी दोस्तों म्यूट खोलें अपना, म्यूट बात करें भाई, सवाल करें जो ऊपर आए। इमरान खान साहब हाथ ही उठाते रहोगे या बात भी करोगे भाई? जी उठा लेता हूँ, और कुछ भी मेरी बात सुने। ये जो गालियाँ और कुछ नहीं निकालते उठाना हैं, भाई तूने, और कुछ नहीं उठाना, सिर्फ मैं कह रहा हूँ माइक खोल ले अपना बस। ये आपके सामने जिन इसने गाली दी है, इनका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए? गाली देनी चाहिए इनको वापस या फिर दुआएं देनी चाहिए? कौन है आप, जरा बताएं थोड़ा सा, कौन है, फिरका क्या है आपका? मेरे अहमदी हूँ मैं भी, मर्चई अच्छा, अहमदी? कादियानी नहीं जिनको बोलते। ठीक है नीचे बैठ जा। तूने गाली देनी है, मैं तुझे गाली देने दूं इधर? दिमाग तुम लोग के ना खराब हो चुके हैं। चलो भाई इसको क्यों उठा लिया यार, ये तो कज बैसी है। चलो थोड़ा सा उसको भी यार कभी कभी ना गाली नहीं वो देता किधर भेज दिया तलत भैया आपने उसको शजरा लेने? वो तो लाइव ही खराब वो गायब हो गया। और आज नहीं है शजरा उनका यार, उसको बुला ले, अगर नहीं मिल रहा तो कल। चल एक और नादर भाई आपके नीचे जो बैठे हैं ये वाले भी नए आए हैं, दोनों नए आए हैं दोस्त। हाँ जी भाई, अपना जंगी भाई, जंगी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या नाम है आपका, किस तरह प्रोनाउंस करते हो? मेरा मेरा नाम अहमद है। नहीं ये किस तरह प्रोनाउंस करते हो इसको? मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है जंग, जंग, तो ये क्यों डाला हुआ है? यूंगे यूंगे। अच्छा यूंगे, इसका तो मसरूफ भाई सही पढ़ रहे थे फिर। Wie seine Junge oder was? Ja genau, ich bin noch Junge। Noch jung ja? Okay। जी हाँ। चलो सवाल कर लो उर्दू में। मेरा थोड़ा सा छोटा सवाल है। अगर आप कुरान से साबित करोगे। क्या चीज? जो मेरा सवाल है सिर्फ कुरान से साबित करोगे। कुरान को मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हदीसों को नहीं मानते? सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह क्यों नहीं, उससे वो क्यों नहीं मानते भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम में। फिर लेकिन जब आप जवाब दोगे ना कुरान से दोगे। क्यों नहीं, हदीसों को नहीं मानते? वैसे ही हदीस से भी दो, उससे भी दो भाई, जवाब देना है। ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल ये है भाई कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने कुरान में इशारा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमान पर है। पक्की बात है? हाँ ना, पक्की बात है, मैंने सुना है इस तरह। कौन सी किताब में? रूहानी हज़ान जिल्द नंबर 8, नूर अल हक अल हिस्सत अव्वल, पेज नंबर 68। चलो भाई देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ताजदारे मुसलमान को, ताजदारे मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम जिंदा। भाई कुरान से साबित करो। अच्छा अच्छा देखें अभी, अब आपने एक मिनट जरा, अभी देखें भाई ने मिर्जा साहब की किताब का पूरा फुल हवाला बताया है, ठीक है। अच्छा अपना यूंगे साहब, कुरान में जानी की सजा कहाँ लिखी हुई है? नहीं नहीं, आप सवाल मत करो, आप जवाब दो कुरान से। देखा, कुरान का बिल्कुल नहीं पता इस्लाम को। मिर्जा साहब की किताबें ठक 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 ठक, अगला हवाला फौरन, बड़ी खुशी होती है। जिल्द नंबर, किताब का नाम, ठीक है, फिर पेज, सफा नंबर, ये वो कुरान भाई जवाब दो भाई, जवाब दो, उसको छोड़ लो भाई। अच्छा सही बुखारी जो किताब है, इसका पूरा नाम क्या है? उसको छोड़ भाई, देख क्या आलिम नहीं हो तो आप जवाब दो, कुरान से साबित करो भाई।
देखा, बुखारी का कुछ नहीं पता इस कौम को, कुरान का कुछ नहीं पता, मिर्जा साहब की किताबें ठक 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 भाई ठक। बुखारी शरीफ पर भी आएंगे, मैं एक हदीस को उसका भी हवाला दूंगा भाई। अभी अब पहले कुरान से आ जाओ, आ जाओ जी। ये तलब भाई आप बताया आ जाएंगे भाई। मैं इधर बैठा हूं थोड़ा। भाईजान हाँ भाई, हाँ भाई, किताब किताब का नाम क्या अस्त हैं? किताब का क्या नाम अस्त? ये बहस लंबी है, मेरा छोटा सा जवाब है। तो मेरा अब्दुल्ला भाई मेरा भी छोटा जवाब है। मैंने उसको बोला कि कुरान से ये साबित करो। पैरा दे रहे हैं, दोनों पैरा दे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, इसलिए मिर्जा साहब की किताबां ਦੀ ਗੱਲ करनी। अब्दुल्ले को पता है इसका जवाब बड़ा हाँ, इसको पता भी कि अब फंस गया बंदा। चलो जी, आप जवाब दो कुरान से। मैं इस पर नहीं बात करनी, मेरा एक और जवाब है। अब्दुल्ला किताब का नाम और नादरे तुम्हें शर्म नहीं आती अब्दुल्ला नाम पकड़े? और अब्दुल्ला साहब आराम से, अब्दुल्ला साहब आराम से जी। किताब का नाम बताएं जी। साहब आपके सामने वो बदतमीजी कर रहे हैं, आप उसको अच्छा नहीं चलो, कोई रोकते। नहीं बात के, कोई नहीं अब बंद म्यूट लगा। अच्छा जी, अपना यूंगा या ब्रदर, wo ist die Safa Number? Kannst du mir sagen? Ja, kann ich auch auf Arabisch sagen, Bruder. Erstmal die Name von der भाई उर्दू में बोले, जर्मन warte kurz, hallo. Jetzt warte Ja, kurz. hallo, guten Tag, hallo, hi. पहले किताब का नाम दस भाई। हौर mal zu, bitte. ओ भाई उर्दू में बोल ले यार, उर्दू समझ आती नहीं तेरे काम को। उर्दू पोएगा, उर्दू पोएगी या उर्दू सब रुको बस। ये मैं आपको अरबी भी बोलता हूँ। हाजा हुआ मूसा फतल्लाहु अर्जा इशारा था। ये भाई उर्दू बोल ले यार, तेरी भाई चवरकार मिर्जा साहब ने लिखा है रूहानी हजान जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 68, उसमें लिखा है आप साबित करो कि कुरान में किधर लिखा है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम आसमान पर जिंदा है। अच्छा मेरे दोस्त, आराम से, मिर्जा साहब की किताब ना आराम आराम से बात करना है, उसमें जल्दी नहीं करने का, ठीक है? जल्दी करने का है भाई। अच्छा, और दूसरे लोग बैठे हैं ना, उसका सवाल का जवाब देना है ना भाई। क्या नाम है किताब का? नूरुल हक है, नूर अल हक अल हिस्सत अव्वल, हिस्सत अव्वल। द पेज नंबर इज 68। तो क्या लिखा है इसमें मिर्जा साहब ने? हाजा हुआ मूसा फतल्लाहु इधर से शुरू होता है, उसका तर्जुमा भी फिर उसके नीचे है। यही वही मूसा मर्द खुदा है जिसकी नस्बत कुरान में इशारा है कि वो जिंदा है, और हम पर फर्ज हो गया है कि हम उस बात पर ईमान ला दे कि वो जिंदा आसमान में मौजूद है और मर्दों में से नहीं। आप साबित करो कुरान से कि कुरान में अल्लाह ने किधर इशारा किया कि मूसा मेरा पास जिंदा है, आसमान पर है। साबित करो भाई। ठीक है। मैं दूं तलब इसका जवाब? हाँ, इसका आप वो आयत जरा पढ़ दे सिर्फ। जी मैं देता हूँ भाई। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि ईसा मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया? भाई ये आपको मेरा जवाब नहीं है ना, मेरा जवाब तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना। जिसका लिखा हुआ नहीं मौत का तो वो जिंदा ही होगा ना। फिर कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया? ये आपका जवाब है? हाँ यही तो जवाब है। नहीं, ये तो जवाब नहीं है ना भाई। सी जवाब तो कुरान में लिखा हुआ है जिसकी मौत का जिक्र नहीं है वो जिंदा ही होगा। या आप बोलो कि मिर्जा साहब ने झूठ बोली है या नहीं? झूठ नहीं बोली, मेरी बात सुन। दूसरा झूठ बताओ भाई, दूसरा झूठ बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र नहीं है। दूसरा झूठ बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र नहीं है ना जी। दूसरा ला एतराज चल। नहीं, इसको तो जवाब दूसरा पर भी आते हैं। ठहरो गलत भाई, दूसरा पर आ जाओ भाई, दूसरा पर आ जाओ। गलत मदद नहीं करने का, स्टॉप, सब्र करो भाई। वो छोड़ के उसने एतराज जिंदा माना जाएगा। ओए अब्दुल्ला म्यूट लगा, अब्दुल्ला भाई थोड़ा प्लीज सब्र करो। इसके दूसरा पर आते, बदतमीजी ना करो। म्यूट लगा। दूसरा पर आ जाए जी। दूसरा सुनो सूरत अल तौबा आयत नंबर 3। खास मत भाई, आ जाओ अभी भागते हंसते हो। फिक्र मकवा करना, स्टॉप करो भी। तीसरा पर आ जाओ। दूसरा भी छोड़ दिया। आप जवाब नहीं देता भाई, आप जवाब नहीं देते। अच्छा जवाब नहीं दिया, दूसरा पूछता उसका जवाब नहीं दोगे भाई। खान साहब
पहले सवाल का भी जवाब देता हूँ, सफा नंबर 70 पर उसका तीसरा जवाब। नंबर पढ़, तीसरा एक नंबर। मिनट खान भाई, और साहब, हमको तीसरा नंबर पे आता है भाई, यो मिनट का ना आप बताओ मुझे खान साहब, आप कितने एतराज है टोटल? भाई मेरा आपके 100 साथ से भी ज्यादा है भाई, 100 से आप भी हल नहीं ज्यादा कर सकते। अच्छा बात तो सुने ना, बात तो सुने, क्योंकि आप लोग झूठ पर रहो ना भाई। Ja, einen Moment bitte, einen Moment, lass mich reden. Abbas. Kannst du reden, Bruder? Ja, Kannst du बात reden? सुनो, उर्दू। बात Alles सुनो, gut, मेरे alles दोस्त। gut। अच्छा, आपके 100 एतराज़ात हैं, ठीक है? ये 100 एतराज़ के जवाबात इंशाल्लाह इसमें से आधे तो हमने यूट्यूब पर दिए हुए हैं। 100 के जवाब दे दें तो आप मिर्ज़ा साहब को नबी मसीह मऊद मान लेंगे? नहीं। हेलो खान साहब, बोलो। मैंने पूछा है कि आपके जितने एतराज़ात आपके पास हैं, ये जो आपने पहला एतराज़ किया ना, इसका जवाब 70 सफ़े पर है। अच्छा, बाकी जितने भी आपके पास एतराज़ है मैंने देखे नहीं ब्लाइंडली, मैं कह रहा हूँ सारों के जवाब दें, तो जवाब देने के मिलने के बाद आप मिर्ज़ा साहब को वही इमाम महदी मसीह जिसका उनका दावा है नबीउल्लाह होने का, मान लेंगे? अच्छा, आप साबित करोगे? जी, मैं आपके सारे एतराज़ों के जवाब दूंगा। तो बात सिर्फ रूहानी खजान से करेंगे? बात रूहानी खजान से, जो बात कुरान की तरफ लुटाएंगे मिर्ज़ा साहब, वो कुरान से करेंगे ना, बताएंगे ना? ठीक है। रूहानी खजाइन से इमाम मेहदी का दावा उनको दिखाएं। अब्दुल्ले म्यूट लगा, अब्दुल्ले। दिखाता हूँ, अब्दुल्ला दिखाता हूँ। हाँ मानेंगे नबी उनको? दिखाता हूँ। हाँ मानेंगे नबी उनको तमाम? ये नादरे बदतमीजी कर, इसका मतलब है कि नबी आ सकता है आपके नजदीक? मेरे नजदीक नहीं आ सकता भाई, आप साबित करो फिर मैं मानूंगा। नहीं, आपके नजदीक तो नबी आ नहीं सकता, तो मिर्जा साहब के खान साहब मेरी मेरे एक नबी है लास्ट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मिर्जा साहब के स्कैनों के जवाब जब मिलेंगे तो हजूर लास्ट रहेंगे? नहीं, वो तो मुझे दज्जाली फितना लगता है मिर्जा साहब। अच्छा, चलो फिर नीचे बैठ के सुनो, अगर दज्जाली फितना भाई साहब नहीं ना उतारे तल भाई, क्या हो गया? नहीं बकवास करने लग गया, दज्जाली फितना, ठीक है? वो फालतू नहीं बात करनी थी मेरे पास। तेरा ये भी जवाब था, इससे नहीं ठीक हो गया तलत भाई, ठीक होगा। आ जाओ खान साहब। यार तल भाई कोई नहीं, अब ठीक जबान ठीक रखिए। नहीं, हाँ तमीज से करे बात। मैंने जब कहा है कि तुम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब के स्कैनों के जवाब देते हैं, तुम्हें सारे देते हैं, इसका जवाब उन्होंने 70 सफ़े पे नहीं होगा तल भाई, एमडी होगा एमडी, मैं कह रहा हूँ ना। आ जाओ खान नादिर साहब, बिल्कुल कोई मसला नहीं, काफी लोग आगे कहते हैं इसने कौन सा पहली बार कहा है। अब्दुल्ले म्यूट लगा, अब्दुल्ले। चले नादिर भाई नेक्स्ट दोस्त लें जरा। नहीं मैं तो थोड़ा सा इसको सर्वे कर रहा हूँ, देख रहा, एक मिनट जरा यार। अपना खान साहब वो आपको जवाब देंगे सारे, फिर आप एमडी हो जाओ ना यार, मैं आपकी चलो गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी एमडी होने की गारंटी दो तो मैं सारों के 100 के जवाब दूंगा। आगे होगा यार, उसने जनी रखे तलब भाई, होगा एमडी। ऐसे अल्फाज अदा निश्ता का ना। हाँ जी यूंगे भाई, देखो मेरी बात सुनो, देखो सुन लो मेरी बात, देखो असूल और कायदे की बात यह है कि जब आपके सारे एतराज़ों के जवाब आपको मिल जाए ना, फिर आपको एमडी होना चाहिए, ठीक है? ये नादरे बदतमीजी कर रहे हैं, तले साहब मैं बाद में आता हूँ। ओके जी अब्दुल्ले आ जा, वापस आ जाए। तो अपना यूंगे भाई बोलो। सवाल जो होता है ना, वो तहकीक हक के लिए होता है, हुसूल हक के लिए होता है, ठीक है? जब आपको एक बंदा जवाब दे आपके सवालों के जवाब, फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन एतराज़ात के जवाबात मिलने के बाद आप ईमान ले आओ। फिर भी अगर आप ईमान ना लाओ तो आप हटतरम हो, आप दज्जाल हो, आप कज़्ज़ाब हो, ठीक है? वो अब तलत भाई आपको कह रहे हैं कि वो आपको जवाब देंगे, तो आप बोल दो हाँ ठीक है मैं ईमान लाऊंगा। सही है भाई, ये तो आप बहुत दूर चले गए। अगर आप लोगों ने जो है ना कुरान से जो मैंने बोला कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है ना, अगर आपने इसको भी कुरान से साबित किया तो फिर भी बताया तो है, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, तो वो ज़ाहिर जिंदा होंगे फिर। नहीं, ये जवाब है नहीं भाई, जवाब तो यही तो जवाब है नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपको देखो मेरी बात सुनो, हजूर ने स्टार भी लगाया हुआ नादिर की किताब में। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात हो चुके, उसके जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह जो है ना, उसने उधर एक हदीस है बोला है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना,
کہ پہلے تو میں نے آپ کو دیا ہے, میری بات سن لو. موسیٰ علیہ السلام کون تھا, عیسیٰ علیہ السلام کون تھا. صاحب آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آپ لوگ نا سوال کرنے نہیں آتے, آپ لوگ جو آپ کے مولویوں نے آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے وہ انڈیلنے آتے ہو. بھائی یہ میرا خود کا سرچنگ ہے, میں نے خود کا مرزا کا کتاب پڑھا ہے بھائی, مرزا صاحب کا کتاب پڑھا, خود کا سرچنگ ہے. آپ قرآن سے ثابت کرو نا, قرآن سے کچھ بھی نہیں ثابت کر سکتا بھائی. اچھا ٹھیک ہے آپ سن لو. اب آپ نے سوال کیا ہے نا, پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو جواب دیا آپ کے عقیدے کے مطابق, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی تو وہ زندہ ہیں, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں لکھی, وہ بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ, وہ آپ مرزا صاحب کی کتاب کی بات کر رہے ہو, اسی کے آگے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے, اسی کے آگے لکھا ہوا ہے, تھوڑا اگلا پیج جا کے دیکھو ذرا, بلکہ اگلا پیراگراف وہ دیکھ لو آپ ذرا جا کے, مرزا صاحب نے لکھا ہو. نادر بھائی اسٹار لگا کے نا حضور نے حضرت موسیٰ کا طور پر جانا لکھا ہے, اس کے بعد اگلے صفحے پر سارا لکھا ہے. لیکن پہلے جواب دینے سے پہلے اس سے پکا کریں کہ یہ احمدی ہوگا 100 کے جواب لینے کے بعد. نہیں طلب بھائی وہ ایک منٹ دیکھ بھائی یار خان صاحب, یار یا تو پھر آپ سوال نہ کرو یا تو پھر ہمیں دینے دو جواب. آپ ٹاپک ہم سے سوال پوچھتے ہو پھر خود ٹاپک بتاتے ہو, ٹاپک مت بتاؤ. قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ میرا پاس موسیٰ زندہ ہے, میرا پاس ہے آسمان پر زندہ ہے. آپ قرآن سے ثابت کرو نا بھائی, میں تسلیم ہوتا ہوں, آپ قرآن سے ثابت کرو. سن تو لو, بات تو سن لو. اگر ہر نبی فوت ہوتا نا تو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے نہ ملتے. مرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلکہ ہر انسان کو ایک زندگی دیتا ہے, لیکن وہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ روحانی زندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مرزا صاحب اس زندگی کا ذکر کر رہے ہیں. تھوڑا سا نا بات کو سیاق و سباق کو سمجھو, بلا وجہ بات کو ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ حدیث کو چوری کرتے ہو. اب یہ حدیث ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گیا ہے اس کا حدیث ہے, ادھر لکھا ہے قرآن میں اشارہ ہے, قرآن میں بتاؤ بھائی. وہ تو قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں آپ کو قرآن میں کیسے اشارہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سن لے میں قرآن میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نفس کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو مجھ سے راضی ہے, میں تجھ سے راضی ہوں, جا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو تمام نبیوں سے ملے وہ زندہ نبی تھے نا, زندگی کی حالت میں ان سے ملاقات ہوئی نا, لیکن وہ یہ والی جسمانی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ جلالی زندگی ہوتی ہے, جلالی جسم دیا جاتا ہے ان کو. اس زندگی کا ذکر کر رہے ہیں مرزا صاحب, نہ یہ جسمانی زندگی کا. آپ غلط کیوں کر رہے ہو؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نشے میں نہیں بولنا بھائی, ادھر براڈ کے اوپر منع ہے نشے میں بولنا. جی تو ٹھیک ہے یونگے بھائی, آپ ہمارا موقف سمجھ لیں میرے بھائی, مرضی آپ کی. آپ غلط ٹرانسلیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں اگر ہمارا جواب سن لیں. دوسرا تو سنو نا بھائی, دوسرا کیا جی, دوسرا کیا, پہلے کا ہو گیا, اب دوسرا بتاؤ. دوسرا روحانی خزان میں مرزا صاحب بولے تھے کہ اس نے خود بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آسمان کی طرف ہی زندہ اٹھایا گیا جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھایا. وہ کون روحانی خزان 17 پیج نمبر. لونگے بھائی اس کا حوالہ 17 اس کا حوالہ کیا جلد نمبر 17 کا ہوگا. یہ روحانی خزان 17 جلد نمبر 17 دیکھا 17. یہ میں نے پرسوں یوٹیوب پر اس کا جواب دیا تھا, میں دوبارہ دیکھ رہا تھا. اچھا دوسرا تو سوال پیج نمبر کیا ہے, پیج نمبر کیا ہے, سوال تھوڑا بڑا ہے نا. میں مکمل تو بولو پھر آپ جواب دو. تحفہ گولوی ہے کتاب ہے. ایک منٹ طلب بھائی, لونگے بھائی اس کا ذرا وہ بتانا ذرا, پیج نمبر کیا ہے. او یار What ist Junge? Lass mich reden zuerst. Das ist meine Frage. Ich muss zuerst meine Frage fertig machen, danach kannst du Antwort geben. ایک منٹ ذرا یار, ایک منٹ پیج نمبر بتا ذرا, پیج نمبر بتانا ذرا. ہاں پیج نمبر کیا ہے. Lass mich zuerst reden. Lass mich zuerst fragen.
Redet doch. Ahmed bhai, isse Aber dann, der Nader labert die ganze Zeit. Sag mal die Safa-Nummer. Welche Safa ist das? Sage ich dir gleich, aber ich zuerst Ja, muss sag.